وہ ولید احمد کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ حسیب خان اسے اپنے سینے سے لگا کر گاڑی تک لے کر آئے تھے۔ روحا اور کوکب بھی اس کی شادی میں آئی تھیں۔ وہ آنسوؤں کے بیچ رخصت ہو کر ولید احمد کے گھر آ گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گاؤں کے اس بنگلہ نما گھر کے آگے رکی، آس پڑوس کی عورتیں اپنی دیواروں اور دروازوں سے جھانکنے لگیں۔ خوباب اور ہنا اس کے ساتھ آئے تھے۔ ہنا نے ہی سہارا دے کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ ولید کی بہنوں اور کزنس نے اس پر پھول نچھاور کیے تھے۔ لے ویکتے ذرا، کنے نکے قدی نو ویا کے لے آئی ہے شمیم۔ دیکھو تو کتنے چھوٹے قد کی بہو بیاہ کر لائی ہے شمیم۔ اندر داخل ہوتے ہی یہ ولید کی کسی رشتہ دار عورت کی آواز تھی جو ہنا کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ اوف ہو، لہنگا کتنا سستا سا لیا ہے، ویسے تو سنا تھا اپنا کماتی ہے۔ دوسری آواز، کماؤ بہو بیاہ کر لائی ہے شمیم۔ ہاں بھائی، اب پورا ٹبر ایک اکیلے ولید کی کمائی پر تو نہیں پل سکتا نا۔ بھانت بھانت کی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ ہنا اور خوباب 2 گھنٹے بعد چلے گئے تھے۔ وقفے وقفے سے ولید کی سبھی رشتہ دار خواتین اس کے پاس آ کر بیٹھتی رہیں۔ پھر دیور اور سسر آ کر بیٹھ گئے۔ دنیا جہان کی بے سروپا باتیں وہ بس جبری سے مسکراتی رہی۔ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ باہر نکلے۔ پھر ولید کے ساتھ اس کی اکلوتی پھپھو جان اندر آ گئی۔ لمبے لمبے دور پار کے قصے اسے سچ میں چکر آنے لگے تھے۔ ارم، مجھے پلیز ایک کپ چائے لا دو، میرا سر چکلانے لگا ہے۔ اس کی بس ہو گئی۔ آدھے پون گھنٹے بعد تو چائے آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب کمرہ خالی ہوا۔ ولید دروازہ بند کرنے لگا تو وہ کہے بنا رہ نہ سکی، رک جائیں ابھی، اور کوئی رہ نہ گیا ہو۔ ولید دھیمے سے مسکرایا تھا۔ امی دروازہ بند کر لوں؟ اس نے بآواز بلند پوچھا تھا۔ موبرا بس اس کی جرت پر حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی پریشان شکل دیکھتے ہوئے ولید نے دروازہ بند کیا تھا۔ پھر شیروانی اتارتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا۔ شیروانی کیوں اتاری؟ میں نے تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا ابھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو ساری عمر کے لیے تمہارا ہوں، ساری عمر دیکھتی رہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ ویسے یہ میک اپ بھی کمال کی چیز ہے، شکل و صورت ہی بدل دیتا ہے۔ دور سے دیکھ کر تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی تم۔ وہ بولا تو موبرا کو نہ جانے کیوں یہ اس کا طنز لگا۔ اچھی نہیں لگ رہی میں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ اوور سی لگ رہی ہو، جاؤ چینج کر لو، اور منہ ذرا رگڑ کر دھونا پلیز، وہ اسے ایک آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کہے الفاظ اور تھپڑ میں بھلا کوئی فرق رہ گیا تھا؟ اس دن وہ کپڑے دھونے لگی تھی، لانڈری نیچے تھی، لیکن جب وہ میلے کپڑوں کی ٹوکری لے کر نیچے پہنچی تو زویا نے اسے کورت جواب دے دیا۔ واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، اوپر ہی دھو لو یا اپنی نکال لو۔ وہ بولی، ابھی کل تو اپنے کپڑے دھوئے ہیں، تب تو ٹھیک تھی۔ روحا نے کہا، میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں کہ خراب ہو گئی ہے؟ زویا نے اسے تیور دکھائے تھے۔ وہ منہ بنا کر اوپر آ گئی۔ اس کی اپنی واشنگ مشین اوپر اسٹور روم میں پڑی تھی۔ اس نے نمرا کی واشنگ مشین کھینچ کر اس میں پانی ڈالا اور ابھی کپڑے ڈالنے ہی لگی تھی کہ وہ باہر نکل آئی۔ وہ کچن بھلے ہی میرے جہیز کا نہ صحیح، لیکن یہ مشین میرے جہیز کی ہی ہے، خبردار جیسے ہاتھ لگایا تو۔ اس نے پائپ نکال کر سارا پانی بہا دیا۔ جہاں مرضی جا کر دھو، وہ بولی تو یہ روحا کو ایک دم غصہ چڑھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اوپر اسٹور سے اپنی واشنگ مشین اتار کر نیچے لائی اور این صحن کے وسط میں لگا لی۔ کچھ ہی دیر بعد پانی سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ نیچے سے زویا کی چنگھاڑ آئی تھی۔ نمرا، نمرا، وہ بوکھلا کر باہر نکلی۔ روحا این صحن کے وسط میں پائپ لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ پانی بھل بھل کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ روحا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیچے ٹی وی لاؤنج پانی سے بھیگتا چلا گیا۔ تو بتائیں کیا کروں؟ گلی میں جا کر لگا لوں مشین؟ نیچے آپ نے نہیں دھونے دیے، اوپر نمرا کو تکلیف ہے، کہاں جاؤں؟ میں تو یہیں دھوں گی۔ وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ زویا نے اسے کوسنے دے دے کر ٹی وی لاؤنج سے پانی نکالا۔ نعمان اور فرحان دونوں چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ دونوں نے شوہروں کے خوب ہی کان بھرے۔ ایک بار پھر کاشف مرزا تک بات پہنچی۔ ایک بار پھر روحا کو بلا لیا گیا۔ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ میں کپڑے کہاں دھویا کروں۔ وہ ایک بار پھر اکیلی تھی۔ مروان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زویا اور نمرا دو بدو ہو کر بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اپنا بیگ باندھا اور نیچے گیٹ تک لے آئی۔ مروان کی بائک جیسے ہی گیٹ پر آ کر رکی، اسی وقت بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ روحا، کیا ہوا؟ وہ بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے، بس۔
रोहा की आंखें कहर ढा रही थी। वो अपने कमरे में थी जब उसने बाहर से शोर की आवाज सुनी। पहले पहल तो वो नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब शोर के साथ गालम गलोच भी सुनाई देने लगी तो बुखला कर कमरे से बाहर निकल आई। सहन में एक घुमसान का रन पड़ा हुआ था। वलीद और उसके दोनों छोटे भाई जाने किन लोगों के साथ गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे। वलीद के माँ बाप और मोहल्ले के कुछ अफराद उन्हें छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सबके मुंह से मुगल्लिजात का एक तूफान निकल रहा था। आंटी क्या हुआ है? उसने परेशानी से अपनी सास से पूछा। मुबरा पुत्र, इधर आ, मेरी बात सुन। शमीम उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले गई। पुत्र, तेरे पास जो सलामियों के पैसे हैं ना, वो तू दे मेरा पुत्र, शमीम ने कहा। लेकिन आंटी हुआ क्या है? उसने फिर पूछा। तू एक दफा पैसे तो दे, फिर बताती हूँ तुझे क्या हुआ है। शमीम उसके सर पर सवार थी। मोबरा ने मजबूरन सलामियों के सारे पैसे निकालकर शमीम के हाथ पर रख दिए। वो भागती उसके कमरे से बाहर निकल गई। मोबरा भी उसके पीछे ही बाहर आई थी। भाभी बाहर न जाना, वलीद भाई ने मना किया है। इरम ने उसका बाजू पकड़ लिया। कुछ देर बाद माहौल पुरसकून हो गया था। तभी वलीद गुस्से में भरा हुआ कमरे में आया। वलीद क्या हुआ? कौन लोग थे ये? उसका जैसे पूछना ही गुनाह हो गया था। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। आइंदा भले ही इस घर के सहन में खून की नदियां बह जाएं, तुम्हारी शक्ल मुझे दरवाजे से बाहर नजर ना आए, समझी? वलीद ने बेदर्दी से उसका बाजू झिंझोड़ते हुए कहा था। मोबरा की दोनों आंखें भरती चली गईं। वलीद उसे कहरबार नजरों से घूरते हुए वॉशरूम में घुस गया था। रात तक वो नॉर्मल न हो सकी। उसे भला कहाँ आदत थी इतना कठोर लहजा सुनने की। हालांकि इन चारों बहन भाइयों में शुएब सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, लेकिन मुबरा से उसने भी कभी इतने गुस्से से बात नहीं की थी। वक्फे वक्फे से उसे रोना आता रहा। उसकी शादी को अभी 2 ही हफ्ते हुए थे। रात के खाने के बाद वो चाय लेकर कमरे में आ गई। वलीद बैकग्राउंड से टेक लगाए अपने मोबाइल देखने में मसरूफ था। मुबरा ने खामोशी से चाय का कप उसके साइड टेबल पर रख दिया और खुद अपनी तरफ बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगी। कुछ देर बाद उसने खाली कप साइड टेबल पर रखा और चुपचाप करवट लेकर लेट गई। वलीद ने उसकी खामोशी का कोई नोटिस नहीं लिया था। कुछ देर बाद वो अपने मोबाइल पर कोई मूवी देखने लगा। वो धीरे धीरे नींद की वादियों में उतर गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर उसकी तरफ मुड़ा। अपने चेहरे पर उसकी गरम गरम सांसों का लम्स महसूस करके मुबरा जरा सा किस्मसाई थी। ये तो कोई तरीका ना हुआ मुबरा वलीद अहमद, शादी के महज 2 हफ्ते बाद ही तुम करवट बदल कर सोने लगी हो। वलीद ने उसके कानों में सरगोशी की थी। मुझे नींद आ रही थी, वो बोली तो आवाज में नींद का गलबा था। चलो अब तो नींद पूरी हो गई ना तुम्हारी। वलीद ने उसे अपने दोनों बाजुओं में भर लिया था। वलीद छोड़ दे मुझे, वो किस्मसा कर बोली थी। क्या हुआ है? वलीद ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर नागवारी से पूछा। आप मुझे तहम्मुल से भी समझा सकते थे। उसकी आंखें फिर भर आईं। ओह, तो तुम नाराज हो? वो तंजिया सा हंसा। यू इंसल्टेड मी, ह्यूमिलिएटेड मी, टीज्ड मी। मुबरा के कहते ही वलीद की तेवरी चढ़ गई थी। तो अब क्या करूं? माफी मांगू तुमसे? उसे गुस्सा आ गया। वलीद प्लीज जाने दें। उसने फिर करवट बदलनी चाहिए, मगर वलीद ने जारहाना अंदाज से उसे अपनी तरफ मोड़ा। दोबारा करवट ना लेना, समझी? वलीद ने मजबूती से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसे बेबस किया था। वलीद, आई एम नॉट कंसेंटेड, मुबरा ने सरगोशी में कहा था। उसे वलीद से एकदम खौफ सा आया था। बट आई एम, एंड इट इज इनफ। उसने लम्हों में उसके गले से दुपट्टा खींचते हुए लाइट ऑफ की थी। वलीद, ये मुबरा खान की उससे आखिरी इल्तिजा थी। जवाबन वो हैवानी सा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुक गया था। अम्मी, मैंने वापस उस घर में जाना ही नहीं है। हर दूसरे दिन मुझे कटहरे में बुलाकर खड़ा कर लेते हैं जैसे मैं कोई आदि मुजरिम हूं। खुदा की कसम, जोया और निम्रा ने उस किचन बनने के पीछे मुझे जलील कर दिया कि हम भी तो हैं। 7 साल से यही किचन इस्तेमाल कर रही हैं। ये कोई अनोखी है, ये कोई निराली है। और जब बन गया तो हक जमाने भी आ गई। उसने घर आते ही एक तूफान खड़ा कर दिया था। मौका महल देखते हुए मुरवान उसे दरवाजे पर ही उतार कर चला गया था। मुरवान कुछ नहीं कहता। कोकब ने पूछा। साजिद मुगल अलग परेशान बैठे थे। तौबा करें, मुंह सी कर बैठा रहता है बस। वो सती पड़ी थी। यकीन करें अम्मी, उन दोनों की बातों पर आंखें बंद करके एतबार करते हैं सब, और मुझे किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। वो सब एक तरफ और मैं अकेली। मेरा तो शोहर भी मेरे साथ नहीं होता। वो रो ही पड़ी थी।
اچھا بس کر، رونا بن کر بچے۔ کوکب کو اس پر ترس آیا تھا۔ امی، خدا کی قسم میں نے اس گھر میں جا کر ایسی ایسی باتوں پر بھی کمپرومائز کیا ہے کہ جنہیں میں کبھی ضروری بھی نہیں سمجھا کرتی تھی۔ مروان کو تو گھر پر ٹکنے ہی نہیں دیتی وہ دونوں۔ ادھر وہ گھر آیا، ادھر ان کے کام شروع، نوکر بنایا ہوا ہے اسے۔ روحا کہتی چلی گئی۔ کوکب بس تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے ہی دن ساجد مغل نے مروان کو کال کر کے گھر آنے کا کہا۔ وہ بیچارہ گھر والوں کی بھی سن سن کر بیٹھا تھا، سسرال کی بھی سننے چلا آیا۔ امی، بس ان سے یہ پوچھنے کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جس زبان سے مجھ سے باتیں کرتے ہیں وہ گھر والوں کے آگے گنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ روحا اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ مروان بیٹے، مسئلہ کیا ہے آخر؟ ساجد مغل نے اس کی طرف دیکھ تو یہ پوچھا۔ انکل، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے صبح بتا دیتی کہ کپڑے دھونے ہیں تو میں صبح ہی اس کی واشنگ مشین نیچے اتار جاتا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا تھا۔ ابو، مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بندہ میری فیور میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ گھر کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ ہر چھوٹا بڑا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر روزانہ کے خرچے بھی یہی اٹھاتے ہیں۔ دونوں بھابھیوں کے نوکر الگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے ان کے گھر میں۔ زوہا اور نمرا اتنے ٹھیکے سے رہتی ہیں، حالانکہ ان کے شوہر دوسرے شوہر ہوتے ہیں، لیکن مجھے راستے کا پتھر سمجھ لیا ہے سب نے، روحا نے کہا۔ انکل، ایسا نہیں ہے، مروان دھیما سا بولا۔ ایسا ہی ہے ابو۔ زویا اور نمرا کو پتا ہے کہ مروان اگر روحا کی سننے لگ گیا تو ان دونوں کا کیا بنے گا، تبھی ہر دوسرے دن میری عدالت لگوا دیتی ہیں۔ اس قدر بےزتی کی حد نہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ انکل، آئی ایم سوری، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا، میں ابھی گھر پہنچا ہی تھا اور یہ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی، وہ بولا۔ مروان، یہ تو کوئی تک نہ ہوئی کہ ہر مہینے یہ میں کیا کر بیٹھ جائے؟ ہم نے شادی کی ہے اس کی، کوئی کھیل تھوڑی نہ کھیلا ہے۔ کوکب کو بھی غصہ آ گیا۔ مروان بیٹے، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں۔ اگر تو روحا کو اس گھر میں عزت ہی نہیں دلوا سکتا تو پھر کیا فائدہ؟ ساجد مغل نے کہا۔ انکل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں اسے اوپر کچن کے ساتھ ہی لانڈری بنوا دیتا ہوں، وہ بولا۔ نہیں، مجھے گھر ہی الگ لے کر دیں، روحا نے کہا۔ مروان نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ الگ گھر لینا انتہائی مشکل ہے روحا، وہ بولا۔ تو جب آسان ہوگا تب لے لینا اور مجھے لے جانا، میں اس جنجال پورے میں تو نہیں جاؤں گی کسی صورت، روحا نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ولید کے کسی دوست نے ان کی دعوت کی تھی، بلایا تو اس بیچارے نے صرف ان دونوں میاں بیوی کو تھا، لیکن جب ایک ایک کر کے ولید کی ماں، باپ، سب سے چھوٹی بہن اور بڑی نند کا بیٹا بھی تیار ہو گیا، اسے اس قدر جمع غفیر کے ساتھ جاتے انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی۔ ولید نے کسی دوست سے گاڑی مانگی تھی۔ دعوت تو خیر جیسی تھی وہ ایک الگ داستان ہے۔ وہاں سے واپس آتے آتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ چپ چاپ نیچے اتری اور کمرے میں چلی گئی۔ کامدار ریشمی سوٹ کے ساتھ اس نے کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے شال اتار کر صوفے پر ڈالی اور دوپٹے کی پنیں اتارنے لگی۔ دفتن ولید اندر آیا تھا۔ مبرا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس خاموشی سے دوپٹہ صوفے پر اچھالتے ہوئے جھک کر سینڈلز کے سٹریپ کھولنے لگی۔ ولید نے اپنا سیل چارجنگ پر لگاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ آج سبھی نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ سیاہ اور گولڈن امتزاج کے نفیس سے کامدار سوٹ میں اس کی گندمی رنگت نکھر سی گئی تھی۔ گول ذرا گہرا سا گلا، فٹنگ والی شرٹ، آدھی آستینیں، تنگ سا پاجامہ، بالوں کو رف سا فولڈ کیا ہوا تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ اور لائٹ سی جیولری پہنے وہ دیکھنے میں اچھی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ ولید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دراصل ایک تو ولید احمد کی وجیز شخصیت کے سامنے وہ ذرا مان پڑ جاتی تھی، اور دوسری وہ اس کے مقابلے میں خود کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتی تھی، حالانکہ بظاہر دیکھنے میں وہ اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی۔ ولید دھیرے سے اس کے قریب چلا آیا۔ وہ جوتے اتار کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، ولید کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حصار بنا گئے۔ بڑے حق سے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے ولید نے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ اب ناراض ہی رہنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ بولی۔ ولید نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے اور لبوں کے کناروں پر ابھی تک ولید کی پرسوں رات والی حیوانیت کے نشان موجود تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنے لب دوبارہ سے ان نیلے نشانوں پر رکھ دیے۔ اچھا، سوری،
ولید کے کہتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ولید، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کے محض 2 ہفتے بعد ہی کیا کیا ہے؟ وہ بولی تو آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ میرٹل ریپ، وہ بولی۔ کوئی خدا کا خوف کرو مبرا، میں نے بس اپنی بیوی سے اپنا حق وصول کیا ہے، اور بس۔ وہ بولا۔ مبرا بس خاموشی سے رخ موڑ گئی۔ مبرا میری جان، میری بات سنو، مجھے کسی بات پر انکار مت کیا کرو۔ پورا گھر جانتا ہے کہ مجھے اپنی کسی بھی بات کے جواب میں انکار سننے کی عادت نہیں ہے، سمجھی؟ میں جب جب تم سے کچھ کہوں بس مان لیا کرو۔ وہ اسے بستر پر گراتے ہوئے اس کے اوپر جھکایا تھا۔ مبرا بس تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کا چناؤ تھا، سو شکوے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے جاب اسٹیشن چوز کرنے کے لیے کال آ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد اسے لاہور جانا تھا۔ ڈسٹرکٹ کالج لاہور سلیکٹ کرو گی نا؟ وہ اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب ولید نے پوچھا۔ مبرا نے اچنپے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اپنا شہر سلیکٹ کروں گی؟ وہ بولی۔ اپنے شہر میں کیا ہے؟ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ڈسٹرکٹ کالج سلیکٹ کر لینا، بس۔ ولید اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ ولید، وہ تو 32 کلومیٹر دور ہے۔ مجھے جب اپنے شہر کے کالج میں ویکینسی مل رہی ہے تو میں اتنی دور کیوں جاؤں؟ روز کا سفر۔ وہ بولی۔ میں بھی تو جاتا ہوں۔ آپ کی تو مجبوری ہے، مجھے کون سی سزا ہوگی؟ دیکھو مبرا، میں نے بھی تو روز روز جانا ہوتا ہے نا، ہم دونوں چلے جایا کریں گے۔ وہ بولا۔ اور واپسی؟ آپ تو 4 بجے آیا کریں گے۔ واپسی کبھی ارینج کر لیں گے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر بولا۔ ولید، بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کی تو مجبوری ہے، مجھے تو نہ پھنسائیں پلیز۔ یہاں اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں مجھے اور اسٹاف بھی۔ وہ بولی۔ ولید کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ فضول بحث کیوں کرتی ہو؟ وہ درستگی سے بولا۔ کیونکہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، میں لامحدود مدت کے لیے وہاں پھنس جاؤں گی۔ ولید، آگے پریگننسی ہو جائے گی تو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ولید نے کہا۔ مبرا نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ ولید احمد کا ساتھ صرف اس کے لیے پریشانیاں ہی کھڑی کر رہا تھا۔ روحا کو میکے آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران مروان 2 بار اسے منانے آیا تھا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ پھر ایک دن فرحت اور کاشف مرزا دونوں آ گئے۔ مروان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی بیٹی کی بہن؟ فرحت کا لہجہ کوکب کو اچھا نہیں لگا تھا۔ بہن، مجھے بس اتنا بتا دے کہ اگر کل کلاں کو آپ کی اکلوتی بیٹی کے سسرال والے اسے یوں روز روز بے عزت کریں تو آپ چپ رہیں گی کیا؟ کوکب نے کہا۔ کیا بے عزت کر دیا ہے اسے ہم نے؟ روحا بھی وہیں تھی۔ میں نے اس دن آپ سے کہا کہ نمرا نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہر بار زویا اور نمرا کی شکایت کے جواب میں آپ مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کھڑا کر لیتی ہیں، اور پھر مروان کو بھی نہیں بولنے دیتی۔ روحا نے کہا۔ روحا بیٹے، اگر نمرا کچن استعمال کر بھی لے تو کیا مذائقہ ہے؟ کاشف مرزا نے کہا۔ تو اگر میں نے اس کی واشنگ مشین استعمال کر لی تھی تو کیا ہو گیا تھا انکل؟ وہ پھٹ پڑی۔ دراصل ہماری غلطی ہے کاشف صاحب، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ نہ یہ دیکھا کہ روحا کے حصے میں صرف ایک کمرہ آئے گا، نہ یہ دیکھا کہ آپ کے سارے گھر کی ذمہ داری مروان کے کندھوں پر ہے۔ کچھ نہیں دیکھا، صرف مروان کا خلوص دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ اسے روحا کی کتنی قدر ہے، اور یہی ہماری غلطی تھی۔ ساجد مغل کہتے چلے گئے۔ ایسی بات نہیں ہے ساجد صاحب، ہمیں آج بھی روحا کی بہت قدر ہے۔ وہ بولے۔ تبھی یہ ہر بار خاموشی سے اپنی بیوی پر اٹھتی ہوئی انگلیاں برداشت کر لیتا ہے، کوکب نے غصے سے کہا۔ پورے 2 ڈھائی گھنٹے بحث ہوتی رہی۔ مروان کے پاس معذرت کے چند بولوں کے علاوہ کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ الگ گھر، بس۔ روحا کی یہی ضد تھی۔ روحا، میں افورڈ نہیں کر سکتا ابھی، مروان نے کہا۔ تو جب افورڈ کرنے والے ہو جائیں تب آ جانا، وہ کہہ کر اٹھائی تھی۔ آج عابدہ اور شعیب اس سے ملنے آئے تھے۔ اس نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ کام تو وہ گھر پر بھی کرتی تھی، لیکن شادی کے محض 1 مہینے بعد ہی اسے کپڑے دھوتے دیکھ کر عابدہ کا دل کھٹا ہو گیا۔ 3 نندے ہیں تیری، بس اتنا ہی چاہتا انہیں بھابھی لانے کا؟ ان سے رہا نہ گیا۔ امی چپ کریں، کوئی بات نہیں، مبرا انہیں اندر لے آئی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ عابدہ اسے دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بھی اسی حیرانی میں بولی۔ شکل دیکھ اپنی، جیسے برسوں کی بیمار ہو۔
और ये नील किस चीज के हैं? आखिर को वो माँ थी। अम्मी कुछ नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। तीनों नंदों में से कोई पास भी न फटके। मोबरा ने खुद ही चाय बनाई, कबाब फ्राई किए और ट्रे में रख कर ले आई। वलीद नहीं आया अब तक? आबदा ने पूछा। बस आने वाले होंगे, वो बोली। तभी उसकी सांस आ गई। बातों ही बातों में मोबरा के लाहौर जाने की बात छिड़ गई। परसों जा रहे हैं ये दोनों। वलीद और मोबरा इकट्ठे ही चले जाया करेंगे। शमीम के कहते ही शुएब ठिठक गया। क्या मतलब? यहाँ वैकेंसी नहीं है क्या? वो बोला। पता नहीं भाई, शायद नहीं है। मोबरा बौखला सी गई। शुएब ने उसी वक्त सेल निकाला और 2-4 मिनट में ही फोन खड़काकर कंफर्म कर लिया। हालांकि मोबरा उससे पहले ही कंफर्म थी। सीट तो है यहाँ, फिर क्यों इतनी दूर जाना है? दूर कहाँ पुत्र, वलीद भी तो रोज जाता है, शमीम ने कहा। आंटी, वलीद की मजबूरी है। एफबीआर का ऑफिस यहाँ नहीं है। मोबरा को कौन सी मुसीबत है जो अपना शौहर छोड़कर 32 किलोमीटर दूर नौकरी करे? चले वलीद को भी आ लेने दे, मैं बात करता हूँ उससे। शुएब को जरा गुस्सा आया था। मोबरा बस काम कर रह गई। उसकी अनथक दुआओं के बावजूद उन लोगों के बैठे बैठे ही वलीद आ गया। शुएब को देखते ही उसकी तेवरी चढ़ गई। मोबरा, मेरे कपड़े निकाल दो। वो बस खुश से लहजे में उन्हें सलाम करता हुआ आगे बढ़ गया। मोबरा उसके पीछे ही अंदर चली आई। ये क्यों आया है यहाँ? मिलने आए हैं। ये हर दूसरे दिन ही चल पड़ता है मुंह उठा के। उसे पता नहीं कि यहाँ पैर रखते ही ये कुत्ता बन जाता है। वो बोला। वलीद, वो मेरे बड़े भाई हैं। मोबरा को अच्छा नहीं लगा। बहन के घर भाई कुत्ता ही होता है मोबरा डार्लिंग। वलीद हंसते हुए बोला था। कुछ ही देर बाद शुएब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने वलीद को बुलाया था। वलीद यार, कोई जरूरत नहीं है मोबरा को अपने साथ ख्वार करने की। तू तो मर्द है, रोज सफर कर लेता है। वो लड़की है यार, आगे आगे और मुश्किल हो जाएगी। वो उसे स्वभाव से समझाने लगा। वलीद बस हाँ हूं ही कर रहा था। उन दोनों के घर से निकलते ही वो मोबरा की तरफ मुड़ा। क्या जरूरत थी उसे अपनी चॉइस बताने की जब हमने फैसला ले लिया था? तो वो चिंघाड़ते हुए बोला। तौबा तौबा, इसका भाई तो सुनते ही आसमान से जा लगा। वलीद, ऐसी तेवरियां दिखाई उसने कि हद नहीं। का कहता आ लेने दो वकील को, वलीद को, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाता हूं। शुएब ने मौके पर चौका मारा था। वलीद, शुएब भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुबरा जोर से बोली। तो मेरी माँ झूठ बोल रही है? वलीद ने यकदम उसे बालों से पकड़ लिया। पूरा घर तमाशाई बना हुआ था। वलीद, बाल छोड़े मेरे। वो दर्द से बिलबिला उठी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा तुम्हारे इन हरामजादे भाइयों में से कोई मुझे यहां नजर आया तो गोली मार दूंगा, समझी? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से करना है बस। वो उसे एक झटके से छोड़ते हुए बोला। मोबरा बस कमाईगी के एहसास से वहीं बैठी रह गई। चॉइस वॉज ऑफ हरसेल्फ, सो। मुबरा के मैके में एक कोहराम मचा हुआ था। शुएब और खबाब का गुस्से से कोई हाल नहीं था। वो अपना शहर छोड़कर 32 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज सेलेक्ट कराई थी। अम्मी, मैं कहता था ना कि गवार हमेशा गवार ही रहता है, चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए। उस कमीने को पता था कि अगर मुबरा यहाँ रही तो उससे कहीं आगे बढ़ जाएगी। धूम तो पहले ही मची हुई है उसकी। आधे से ज्यादा शहर जानता है उसे। धड़ाधड़ बच्चे पढ़ने आते थे उससे। ई बिजनेस अलग से कर रही थी। उसे पता था कि अपना शहर सिलेक्ट करके तो वो स्टार बन जाएगी। शुएब भड़क पड़ा था। तो मैं क्या करूं शुएब? कितना तो समझाया था उसे। अपनी मर्जी से कूदी है वो इस गड्ढे में। आबदा इंतहाई परेशान थे। अम्मी, उसे कॉल करें, हम अभी होकर आते हैं उसकी तरफ, शुएब ने कहा। खुबाब, कॉल कर उसे। खुबाब ने उसका नंबर मिला लिया। दूसरी तीसरी बार पर उसने कॉल रिसीव की। मुबरा, बेटे इतनी दूर की सिलेक्शन क्यों कराई है? खुबाब तो कॉल रिसीव होते ही फट पड़ा। दूसरी जानिब मुबरा की जान हलक में उमड़ आई थी। वलीद उसके पास ही बैठा था। मुबरा ने एक नजर उसे देखा। खुबाब की आवाज बाहर तक आई थी। नामहसूस से अंदाज से मुबरा ने वॉल्यूम कम किया था। खुबाब भाई, वो कॉलेज ज्यादा अच्छा है, वहां का रिजल्ट भी बेहतर होता है और वहां। खुबाब ने उसकी बात काट दी। मुबरा, तुझे ये नहीं पता चलता कि वो कितना दूर है? शदीद गर्मी और सर्दी में क्या क्या करेगी? वो बोला। मैं और वलीद इकट्ठे चले जाया करेंगे। मुबरा ने बमुश्किल आंसुओं का गोला हलक में उतारा। वलीद मुसलसल उसे घूर रहा था। तुझे वलीद नहीं कहा है ना ये सब करने के लिए, है ना? खुबाब की बस हो गई थी।
शुएब ने उसके हाथ से सर लिया था। मुबरा, बच्चे मैं और अम्मी आ रहे हैं थोड़ी देर तक, ओके? वो बोला। शुएब भाई प्लीज, मेरी जॉब है, मेरी जिंदगी है, मैं कर लूंगी मैनेज, आप रहने दें, आने को कोई जरूरत नहीं है, मुबरा ने जरा ऊंची आवाज में कहते हुए कॉल काट दी थी। वलीद के लबों पर ना महसूस सी मुस्कुराहट बिखर गई। मुबरा अपने आंसू साफ करती हुई करवट बदल कर लेट गई। मुबरा, मेरी जान, वलीद ने उसकी जानिब करवट बदलते हुए उसे पुकारा। वो बस चुपचाप पड़ी रही। इधर तो देखो, वलीद ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे अपनी तरफ मोड़ा था। मुबरा का चेहरा आंसुओं से तर था। मैं हूं तुम्हारे साथ, वो उसका चेहरा खुश्क करते हुए बोला था। वलीद, मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आपको चुना है। खुदा की कसम मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, लेकिन खुदारा मेरी मोहब्बत को मेरे कंधों का बोझ ना बनाए। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। वलीद ने उसका शिकस्ता सा वजूद अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया। आई लव यू मेरी जान, वो बस उसके कानों में सरगोशियां सी घोल रहा था। रोहा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वो बस कागज का वो टुकड़ा हाथ में पकड़े उसे देखती रह गई। वो कोकब के साथ अस्पताल आई थी। लेडी डॉक्टर ने उसे दवाएं वगैरह लिख दी। घर आकर भी बस वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। शाम को साजिद मुगल और साथ घर आए तो कोकब ने उन्हें भी बता दिया। वो भी बस सुनकर खामोश हो गए। रात के खाने पर रोहा नीचे न उतरी। साजिद मुगल खुद उसके कमरे में आए थे। वो करवट लिए लेटी थी। रोहा, मेरा बेटा, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे चेहरे पर खुशी देखनी है। अगर जाना चाहती है तो भी हम तेरे साथ हैं, और अगर यहाँ रहना चाहती है तो भी ये तेरे बाप का घर है, वो बोले। रोहा की आंखें भर आई। अब्बू, वो अपने घर वालों के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं करता, वो बोली। शायद अब कुछ बदलाव आ जाए। साजिद मुगल ने उसके सर पर हाथ रखा था। अलग घर भी अपना ले तो फिर है ना रोहा, किराए के मकान का क्या फायदा। उन्होंने कहा, अब्बू, आपको शादी से पहले ही यह शर्त रखनी चाहिए थी कि वो पहले अपना अलग घर बनाए। रोहा ने कहा, बस बेटा, गलती हो गई। हमने यही सोचा कि पहली दो भी तो रह रही हैं ना, वो बोले। उसे बता दिया? उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। रोहा ने नफी में सर हिला दिया। उसे बता दे मेरा बच्चा, फिर जब आए तो जो शर्तें मनवाना चाहे मनवा कर चले जा। मैं कहूंगा उसे कि अलग घर का बंदोबस्त भी जल्द अज जल्द करे, साजिद मुगल ने धीरे से कहा था। रोहा बस खामोश बैठी रह गई। चंद लम्हों बाद उसने अपनी रिपोर्ट मरवान को व्हाट्सएप की थी। 3-4 सेकंड बाद ही मरवान की कॉल आने लगी। रोहा बस मोबाइल ऑफ करते हुए करवट लेकर लेट गई थी। आंसू बहते चले जा रहे थे। वो कॉलेज जाना शुरू हो गई थी। सुबह तो वलीद उसे अपने साथ ले जाता था, लेकिन दोपहर के वक्त वो ऑफिस में मसरूफ होता था। मुबरा कभी तो 4 बजे तक उसके इंतजार में रुकी रहती, कभी बस पकड़ कर आती, कभी रिक्शा करवा लेती। नौकरी इतनी मुश्किल नहीं थी जितना उसका आना जाना मुश्किल हो गया था। वो भी एक ऐसी ही रात थी। वलीद घर आ गया था। वो चेंज करने वॉशरूम में घुसा तो मुबरा उसके लिए खाना लेने चली गई। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर वापस आई तो वलीद अभी तक वॉशरूम में ही था। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी तो उसका सेल बज उठा। साद की कॉल थी। उसने रिसीव कर ली। रस्मी सा हाल अहवाल जानने के बाद वो असल मुद्दे पर आया था। मुबरा, दोबारा ज्वाइन कब करेंगी? उसने पूछा। साद, दरअसल कॉलेज से वापस आते आते बहुत देर हो जाती है, सो मुश्किल ही है कि दोबारा ज्वाइन कर सकूं, वो बोली। तभी वलीद वॉशरूम से निकल आया। मुबरा, मेरा तो कबाड़ा निकल जाएगा आपके बिना। साद की बेचारगी पर उसे हंसी आ गई। वलीद ने चौंक कर उसे देखा। आप किसी और को मैनेज कर ले। और कोई भला आप जैसे इंटेलिजेंट होगा? साद ने कहा। कोशिश करें, कोई मिल ही जाएगा। वलीद बिस्तर पर बैठ गया था। आप प्लीज कोशिश करें वापस आने की। कॉलेज से वापस आकर शाम में यहाँ आ जाया करें, साद ने कहा। अच्छा, मैं देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। वो वलीद की तेवरियां देखते हुए कॉल काट गई थी। ये लें, खाना खाएं। उसने ट्रे उठाकर वलीद के सामने रख दी। किसका फोन था? साद मुगल का। दोबारा से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का कह रहे हैं। वो वलीद के पास ही बैठ गई। हंस क्यों रही थी? उसने दुरुस्तगी से पूछा था। क्या? मुबरा समझ न सके। उसकी बात पर हंस क्यों रही थी? वलीद ने एकदम उसका चेहरा दबोच लिया था। मुबरा की आंखें उमड़ गईं। खबरदार जो आइंदा उस खबीज का फोन सुना तो अभी डिलीट करो उसका नंबर। वलीद ने उसका जबड़ा मजबूती से भींच दिया। वलीद छोड़ें, वो बिलबिला उठी थी। क्या कह रहा था? वो बस दोबारा
ज्वाइन करने का। मुबरा की आवाज हलक में फंस गई। कोई जरूरत नहीं है, समझी? कॉलेज से वापस आकर किचन संभाला करो। वलीद ने एक झटके से उसे छोड़ा था। वो एक तरफ को गिर सी गई। वलीद कहरबार नजरों से उसे घूरता चला गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करो या किसी और की बात पर हंसो, समझी? वो उसे देखते हुए बोला। मुबरा बमुश्किल सीधी हुई। अच्छा, नहीं करती अब उससे बात। वो अपना जबड़ा दबाते हुए बोली, खाना तो खा ले। वो ट्रे दोबारा उसके आगे करते हुए बोली। वलीद ने उसे रख के घूरा। प्लीज, मुबरा ने लुकमा बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। दूर हो जाओ मुझसे, वो एकदम कहते हुए आगे को हुआ और इससे पहले कि हाथ मारकर ट्रे का सत्यानाश करता, मुबरा ने उसे कुफल लगा दिया। वलीद की उंगलियों ने उसके पिछले सर के बाल जकड़ लिए थे। सुर्ख शोला बनी आंखों से उसे घूरते हुए वलीद ने उसे बिस्तर पर गिराया था। सॉरी, बस। मुबरा उससे डर सी गई थी। खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा गुस्सा बस एक सॉरी से ठंडा नहीं होगा। लाइट ऑफ करते हुए एक बार फिर किसी दरिंदे का रूप धार गया था वो। अंकल, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। किचन के साथ ही मैंने लॉन्ड्री बनवा दी है। वॉशिंग मशीन मुस्तकिल वहीं रहेगी। ऊपर का किचन रोहा के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी चीज़ों को भी उसके इजाज़त के बिना और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। बाकी जो आप कहें, जो रोहा कहे, मैं करने को तैयार हूँ। मुरवान अगले ही दिन भागा चला आया था। मुरवान बेटे, रोहा किसी की जिम्मेदारी नहीं है सिवाय तेरे, और कोई तेरी जिम्मेदारी नहीं है सिवाय तेरी बीवी और माँ बाप के। मैं ये नहीं कहता कि कोई जिम्मेदारी ना उठाओ, लेकिन तेरी अव्वलीन जिम्मेदारी तेरी बीवी है बेटे, साजिद मुगल ने कहा। जहां मेरी बेटी गलत होगी मैं उसे गलत कहूंगा, लेकिन जहां तू गलत होगा वहां तुझे गलत कहूंगा। हालांकि ये मेरी नाजों पली इकलौती बेटी है, लेकिन मैंने फिर भी उसे कभी बदतमीजी करना या किसी से ज्यादती करना नहीं सिखाया। हालांकि तेरे माँ बाप भी इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये फिर भी उनकी हर तरह की खिदमत करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ उनकी और किसी की नहीं। वो कहते चले गए। उसे खुश रखना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, उसका साथ देना फ़र्ज है तेरा मुरवान। और ये सब मैं सिर्फ तुझसे नहीं कह रहा, ये सब मैं अपने बेटे से भी कहूँगा, वो बोले। वो बस सर हिला कर रह गया। उसी शाम वो रोहा को वापस ले गया था। धीरे धीरे उस पर सारे राज आश्कारा होने लगे। बज़ाहिर देखने में उस घर में 4 अफराद थे, 4 कमाऊ अफराद, लेकिन हकीकतन कमाने वाला सिर्फ वलीद ही था। उसके ससुर मारे बांधे ही जमींदारी करते थे। जमीन भी ना होने के बराबर थी, उसे भी ठेके पर दे रखा था। वहां से बस जो ठेका आता उससे साल भर की गंदुम ही पूरी होती थी। छोटे दोनों इंतहाई मनमौजी किस्म के लड़के थे। एफए के बाद दोनों ने तालीम छोड़ दी थी। उनमें से एक तो किसी सियासी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और दूसरा क्रिकेट का शौकीन था। बस हर लम्हा वो दोनों अपने शौक ही पूरे करते नजर आते थे। वलीद अगर किसी के कहे सुने से उन्हें किसी काम पर रखवा भी देता तो ज्यादा से ज्यादा भी वो दोनों बस 1 आध महीना ही निकालते थे, फिर से मौजे। बस सुबह शाम रोटियां ही तोड़ते थे। बड़ी नंद तलाक याफ्ता थी। वो अपने 2 बच्चों समेत वलीद की ही जिम्मेदारी थी। उन तीनों का हर तरह का पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, दवा दारू सब कुछ वही करता था। छोटी दोनों अभी पढ़ रही थी। कॉलेज की फीसें, रिक्शे का खर्चा, ट्यूशन फीसें सब वलीद के सर पर, और वो दोनों एक से बढ़कर एक निकट्ठू, मारे बांधे ही उनसे कोई काम होता था। धीरे धीरे उसे इदराक हुआ कि आखिर इतना सब कुछ वलीद अकेले कैसे मैनेज करता था। कभी इससे पैसे पकड़ लिए, कभी उससे पकड़ लिए। महीने का राशन उधार पर, दूध उधार पर, सब्जी उधार पर। बिजली का बिल मुश्किल से अदा होता था। ना जाने कितने लाख का उसके सर पर उधार चढ़ा हुआ था। ऊपर से उनके अल्ले तलल्ले, आए रोज के नत नए कपड़े, जूते, हर रोज का फ्रूट, फास्ट फूड्स, पार्टीज, और उन सब में सरे फहरिस्त वलीद खुद था। वो खुद पर खर्च करने के मामले में हद से ज्यादा शाखर्च था। महंगे से महंगा कपड़ा, 3 पीस, जूते, परफ्यूम, घड़ियां। महीना कब शुरू हुआ, सैलरी कब आई और कब खत्म हो गई, कोई पता नहीं। दोस्तियां पालने में भी वो तीनों भाई शेर थे। आए रोज के लंच, डिनर्स, नाश्ता, पैसा पानी की तरह बहता। खास तौर पर जो देवर सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसका तो आया गया ही खत्म नहीं होता था। आए रोज दरवाजे पर तकाजा करने वाले खड़े रहते। आए रोज की गालम गलोच, मारपीट, लड़ाई, मार कुटाई।
धीरे धीरे उस पर हौलनाकियां अफशा होने लगी। वलीद के कहने पर किचन उसके हवाले कर दिया गया। कॉलेज से वापस आकर हंडिया वही बनाती थी, फिर शाम में रोटियां। सुबह का नाश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता उसके हिस्से ही में आ गया। सुबह उठते ही वो चाय बनाती, सालन गरम करती, सास ससुर को अपना नाश्ता देकर अपना और वलीद का नाश्ता बनाकर कॉलेज की तैयारी करती। नंदे आराम से अपने हिसाब किताब से सोकर उठती। सफाई कब होती थी और कब नहीं कोई पता नहीं। बर्तन कब धुले कोई पता नहीं। दोपहर में वापस आकर रोटियां बनाती, सालन बनाती। सिंक गंदे बर्तनों से भर जाता। जाहिर है जो सुबह के बर्तन धोती वो शाम के बर्तनों को कहाँ हाथ लगाती। शाम की रोटियां बनाकर मुबरा ही वो गंदे बर्तन धोती। पहले पहल तो खाने में 100 नुक्स निकलते। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा, कभी चाय अच्छी नहीं बनी, कभी रोटी जल गई। तौबा! बड़ी मुश्किल से रूटीन सेट होती गई। आपदा का जब फोन आता उसके पास एक ही जवाब होता, सब ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद वो सिर्फ एक बार मैके गई थी, और तब भी वलीद उसे दरवाजे पर ही उतार आया था। रोहा की मुश्किलात काफी हद तक कम हो गई थी। वो अब ज्यादातर ऊपर ही रहती थी, सारा काम ऊपर ही निपटाया करती थी। वैसे भी मुरवान ने उसे ज्यादा उतरने चढ़ने से मना कर दिया था। काशिफ मिर्जा ने फरहान और नौमान दोनों को बुलाकर समझाया था। मुरवान अब अकेला नहीं है, उसकी एक अदद बीवी है जिसका उसे पूरा ख्याल रखना है। अपनी बीवियों से कहो कि उसकी जिम्मेदारियां जरा कम करे। जब छुट्टी पर आते हो तो उनके ज्यादातर काम निपटा कर जाया करो। वो कहते चले गए थे। राबा के मंगेतर वापस आ गया था और उसके आते ही उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर में शादी के हंगामे जाग उठे। ज्यादातर काम मोरवान के ही जिम्मे थे। उसकी एकेडमी शहर की टॉप एकेडमी बन चुकी थी। जब से मुबरा ने साद का कोचिंग छोड़ा था उसके पास स्टूडेंट्स की तादाद और ज्यादा हो गई थी। साद ने जैसे तैसे मुबरा की कमी को पूरा करने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन मुबरा हसीब खान बस एक ही थी। वो भला उस जैसी दूसरी कहां से लाता। वो कहते हैं ना कि शोहरत का नशा दौलत से भी ज्यादा सर चढ़कर बोलता है। यही नशा मुरवान को चढ़ता चला गया था, और उस नशे ने उसके तमाम तर ज़ाहिरी ऐब बड़ी कामयाबी से छुपा दिए थे। वो अपने डिपार्टमेंट का HOD था। शख्सियत में पहले से कहीं ज्यादा निखार आ गया था। सेहत भी पहले से अच्छी हो गई थी। अब तो रोहा ने उसे 3 पीस भी पहनाना शुरू कर दिए थे। फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ चश्मा लगाए वो अच्छा खासा डिसेंट लगने लगा था। राबिया की शादी के सारे इंतजामात उसी ने संभाले थे। फरहान और नामान को बस एक हफ्ते पहले ही छुट्टी मिली थी। वो दोनों तो मेहमानों की तरह आए थे। रोहा ने दिल खोलकर अपनी और मुरवान की शॉपिंग की थी। राबिया के साथ जाने का सवाल उठा तो फरहत ने रोहा और मुरवान ही को भेजा। जोया को तो पतंगे लग गए कि मैं बड़ी हूं तो मैंने जाना था। निम्रा का अलग से मुंह फूल गया। तुम दोनों के बच्चे कौन संभालेगा पीछे से, रोहा को जा लेने दो, फरहत ने कहा। शादी के बाद पहली बार रोहा को कुछ सुकून का एहसास हुआ था, और शायद ये पहली बार था कि सभी ने उनकी जोड़ी को सराहा था। रोहा तो खैर थी ही शहजादी। मुरवान मिर्जा भी कोशिशें करते करते उस शहजादी के बराबर आ ही गया था। उससे रोहा की कॉल आई थी। 7 की डेट फिक्स हो गई थी और वो उसे शादी में बुला रही थी। रोहा, मैं नहीं आ सकूंगी यार। मुबरा जानती थी कि वलीद मर कर भी नहीं मानेगा। क्यों? कौन से हल जोतने लगी हुई है तू वहां? रोहा को हस्बे मामूल उस पर गुस्सा आया। रोहा, वलीद को अच्छा नहीं लगता। वो कह ही गई थी। रोहा को किसी तरह मुतमईन भी तो करना था। क्या अच्छा नहीं लगता? बस यही फंक्शंस वगैरह। वाह भाई वाह, खुद तो वलीद अहमद हर फंक्शन की जान बना होता है। मुरवान बता रहे थे कि मजाल है जो कोई शादी, कोई मंगनी या कोई भी और फंक्शन वो अटेंड ना करे। रोहा जल ही तो गई। मुबरा चुप रह गई। ये सच भी था। 4 बजे घर आने के बाद वलीद का ये आए रोज का वतेरा था। कभी किसी दोस्त का वलीमा, कभी किसी के मंगनी, कभी किसी की पार्टी, नत नए कपड़े, जूते और क्या कुछ। मुबरा, रोहा उसकी खामोशी को भांप गई। हाँ, उसकी आवाज ही खाली सी थी। मुबरा, तू खुश तो है ना? उसने पूछा। हाँ, मैं खुश हूं, वो बोली तो आवाज में नमी सी खुल गई। मुबरा, तू रो रही है? नहीं, तू झूठ बोल रही है ना? रोहा परेशान हो गई थी। रोहा, मैं फिर कॉल करूंगी तुझे। मुबरा कॉल काट गई थी। वो उस दिन हंडिया बनाने लगी तो सिलेंडर खत्म। आंटी, सिलेंडर खत्म हो गया है, उसने सास को बताया। तो मैं क्या करूं? मंगवा कर दे, हांडी नहीं बनानी।
मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। पहले कौन भरवाता है? वलीद ही भरवाता है, सास ने कहा। उसने वलीद को कॉल की। वो न जाने किस बात पर भरा बैठा था, उस पर अच्छा ही बरसा। मुबरा ने चुपचाप कॉल काट दी। आंटी कैसे बनाऊं अब सालन? वो परेशान खड़ी थी। वो पड़ा है चूल्हा और लकड़ियां, जाकर वहां बना ले, वो रुखाई से बोली। मुबरा के हाथों के तोते उड़ गए। उसने भला कहाँ कभी लकड़ियां जलाई थी? इरम, आग जलानी आती है तुम्हें? भाभी तौबा करें, अनम तुम्हें आती है? नहीं भाभी। वो दोनों मूवी देखने में मगन थी। वो बेचारी चुपचाप पलट आई। कुछ देर लकड़ियों से जोर आजमाई करती रही, लेकिन बेसूद। धुएं से आंखें सुर्ख हो गईं और भल भल पानी बहने लगा। नाचार वो वापस आ गई। इमाद, सिलेंडर तो भरवा दो, सालन बनाना है। वो आंखें साफ करते हुए देवर के कमरे तक आई थी। भाभी, 3500 का है, वो बोला। मोबरा ने चुपचाप उसे पैसे ला दिए और उसके बाद तो बस सिलसिला ही चल निकला था। महीने के आखिर पर दूध के बिल पर इस कदर झगड़ा हुआ कि खुदा की पनाह। मजबूरन वो पैसे भी मुबरा ने ही दिए। धीरे धीरे हर छोटा मोटा खर्चा इसी के पल्ले पड़ने लगा। वलीद, हमें कुछ सेविंग भी करनी चाहिए, आगे को फैमिली बढ़ जाएगी। वो उठते बैठते परेशान होती थी। कर लेंगे सेविंग भी, सारी उम्र पड़ी है अभी। तुम जरा 10,000 दो, बिजली का बिल देना है, मेरे पास नहीं है। चलो जी, बात खत्म। और फिर ये वतेरा ही बन गया। वो सास या देवरों में से किसी को भी कोई काम कहती तो फट से पहले पैसे का सवाल हो जाता। घर में कोई मेहमान आ जाए, मुबरा पैसे दे दो। कोई चीज खत्म हो जाए, मुबरा मंगवा दो। ससुर तक उससे पैसे मांगने लगा था और उस बेचारी की हालत ये हो जाती थी कि महीने के आखिर में आकर खुद पाई पाई को तरस जाती थी। भाभी 500 देना, फेशियल करवाना है। भाभी 2000 देना, मेरे कुछ मेहमान आए हैं। भाभी एक सूट ही ले दो मुझे। मुबरा, मैनू भी एक सूट ले दे। मुबरा, मैनू जूती लेकर दे इस महीने। मुबरा, मैंने अनस को साइकिल लेकर देनी है तूने। वड्डी मामी है तो उसकी बड़ी नंद अलगर्ज, सभी ने उसे बैंक समझ लिया था। उस दिन रोहा ने डॉक्टर के पास जाना था। मुरवान को उसने सुबह ही जल्दी आने का कह दिया था। 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी। वो इंतजार करती रही। मुरवान 2 बजे भी ना आया। उसने कॉल की तो नंबर बंद। वो शाम 5 बजे घर आया। कहाँ थे आप? मैंने कहा भी था कि डॉक्टर के पास जाना है। वो फट पड़ी। रोहा यार, नौमान भाई की कॉल आई थी, उनका कोई बैंक का काम था, बस वहीं देर हो गई। वो शर्मिंदा सा बोला। कल चलेंगे लाजमी। वो खुद भी थक गया था। अगले दिन वो फिर ना आया। मरवान, कहाँ हैं आप? बस आ रहा हूं, अम्मी ने रोशन का फोन कर दिया था। वो बोला तो रोहा कलस कर रह गई। अभी वो घर आया ही था कि जोया ने रोक लिया। मुरवान, बच्चों वाला रिक्शा खराब हो गया है, भाग के उन्हें स्कूल से तो ले आओ। नाचार वो उसी वक्त भागा और बच्चों को ले आया। तब तक 2 बज गए। चलो रोहा। वो अफरा तफरी में भागता हुआ ऊपर आया था। पहले अपनी भाभीयों से पूछ ले कि और कुछ तो नहीं करवाना आपसे। वो तड़क गई। अच्छा यार, गुस्सा ना करो, चलो आओ, वो बाहर निकलते हुए बोला। रोहा बस उसे घूरते हुए बाहर निकल आई। मुरवान, ये सामान तो ले आना आते हुए। निम्रा ने उसे एक लिस्ट थमाई थी। हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शॉपिंग करने नहीं जा रहे, रोहा ने भड़क कर कहते हुए वो लिस्ट निम्रा के आगे फेंक दी थी। चलें जल्दी। वो मुरवान का हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। वो किचन निपटा कर कमरे में आई तो वलीद कहीं जाने की तैयारियों में था। कहाँ जा रहे हैं? एक दोस्त का वलीमा है, वो बाल बनाते हुए बोला। मुबरा ने एक नजर उसे देखा। वो नेवी ब्लू 3 पीस अभी कल ही खरीद कर लाया था और उसमें कोई शहजादा ही लग रहा था। एक बात कहूं? वो उसके करीब चली आई। हाँ। वलीद ने खुद पर परफ्यूम छिड़का था। रोहा काफी इसरार कर रही है, आज 7 का भी वलीमा है, मैं चली जाऊं? उसने वलीद के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए पूछा। कितना जरूरी है तुम्हारा जाना? उसने पूछा। वलीद, जब से शादी हुई है मैं कहीं नहीं गई, प्लीज, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जाते हुए मुझे वहां छोड़ देना। उसने मिन्नत की थी। मुबरा, पिछली सारी यारी दोस्तियों पर अब मिट्टी डाल दो। जहर लगती है मुझे ये ऊट पटांग किस्म की दोस्तियां, और वो रोहा तो मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती। वो तड़क गया। मुझसे जुड़ा कोई रिश्ता अच्छा भी लगता है आपको? मुबरा, फजूल बहस न करो। वलीद ने बुरी तरह उसे झटक कर पीछे को हटाया था, फिर अपना कोट उठाकर पहनने लगा। मुबरा बस खामोशी से बिस्तर पर लेट गई।
वो अपना मोबाइल और बाइक की चाबियां उठाते हुए बाहर निकल गया था। आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए वो लेट गई। बहुत देर तक नींद तो न आई। रह रह कर वलीद के रवैये पर अफसोस होता रहा। उसकी शादी को 4 माह होने को आए थे और इन 4 माह में सिवाय वो लम्हा जब वलीद को उसकी ज़रूरत होती थी, उसके अलावा उन दोनों के बीच कोई खुशनुमा पल नहीं था। ना ही वो उसे कहीं घुमाने लेकर गया था, ना ही वो उसे किसी दावत पर लेकर जाता था, और अगर कभी किस्मत से ले भी जाता तो उसका आधा खानदान साथ जाता था। हर गुजरते लम्हे के साथ जिंदगी उस पर बोझ बनती जा रही थी। उसके माँ बाप का कहा एक एक लफ्ज दुरुस्त था। शक्लो सूरत के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती, और यह सच था। वलीद का साथ सिर्फ उसके लिए अजियत का बायस था। अचानक उसे रोहा की कॉल आने लगी। एक लंबी सांस भरते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और उसकी कॉल रिसीव कर ली। देख ले तू अपने काम मुबरा, आ जाती तो क्या था। वो भड़क ही पड़ी। रोहा यार, वलीद की तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसी वजह से। रोहा ने उसकी बात काट दी। झूठी औरत, वलीद खुद तो यहां आया हुआ है। एक पहाड़ था जो मुबरा के सर पर आन गिरा। सच बता, वो जानबूझकर तुझे नहीं लेकर आया ना? रोहा ने कहा। नहीं रोहा, मैं बस। वो रो ही पड़ी। मुबरा यार, रो क्यों रही है? रोहा एकदम परेशान हो गई। मुबरा ने कॉल काट कर मोबाइल ही ऑफ कर दिया। दिल जैसे दुख की अथाह गहराइयों में गिरता जा रहा था। बार बार आंसू बह निकलते। वो गाल रगड़ रगड़ कर भी थक गई। वलीद जानबूझकर उसे साथ नहीं लेकर गया था। वो अक्सर ही उसे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाता था, और वो जानती थी कि वजह उसकी डाउन पर्सनैलिटी थी। रात 12 के करीब वो घर आया। मुबरा को जागते देखकर हैरान हुआ था। तुम अभी तक नहीं सोई? उसने लाइट ऑन करते हुए पूछा और कोट उतार दिया। आप साथ के वलीमे में गए थे ना? मुबरा ने पूछा। वो एकदम उसकी तरफ मुड़ा। मुबरा सते हुए चेहरे के साथ उसे देख रही थी। हाँ गया था। फिर? अगर मुझे भी ले जाते तो क्या था, उसने कहा। तुमने वहां जाकर क्या करना था? आपने क्या किया है वहां जाकर? वो उसके मुकाबले आ गई। मुबरा बकवास बंद कर लो। वलीद को गुस्सा आ गया। वलीद, आज आप मुझे बताएंगे कि आखिर मेरा कसूर क्या है? बस इतना कि मैंने आपसे शादी कर ली है। उसका सारा जब्त ठीक हो गया था। आखिर कमी क्या है मुझ में? अंधी हूं मैं या कानी हूं या होंठ कटे हुए हैं मेरे, या माजूर हूं या लंगड़ाती हूं, या राशा है मुझे मुंह से बलगम गिरती है? क्या है मुझे जो अपने साथ खड़ा करते हुए शर्म आती है आपको? वो चीख पड़ी थी। वलीद के जोरदार तमांचे ने उसका गाल सुर्ख किया था। जुबान बंद कर लो वरना काट दूंगा, वो उंगली उठाते हुए बोला। मुझे क्यों नहीं लेकर गए? वो दोबारा खड़ी हो गई थी। मेरी मर्जी। वलीद ने शर्ट के बटन खोलते हुए उसे घूरा। मैं बताऊं आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि आप डरते हैं मुझसे, मेरे मुकद्दर से। एहसास कमतरी है आपको कि आपकी बीवी की पोस्ट आपसे अच्छी है। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोली। चलो शुक्र है तुम्हें ये बात तो समझ आ गई कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। जरा एक नजर देखो खुद को। कहां से तुम वलीद अहमद के काबिल हो? मेरे साथ खड़ी होकर नौकरानी लगती हो तुम मेरी। वो तंजिया सा हंसा था। मुझे जानबूझकर नौकरानी बना दिया है आपने। जानबूझकर मुझे जलील करते हैं आप। जानबूझकर आपने मुझे 32 किलोमीटर दूर फेंक दिया। वो जोर से बोली थी और वलीद की बर्दाश्त खत्म हो गई। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उसने अपनी पैंट से बेल्ट खींची थी। मैंने कहा था बकवास बंद कर लो। उसने जन्नाटे से बेल्ट उसे मारा। मुबरा की चीख निकली थी। खबरदार जो मुझे मारा, वो चीखते हुए बोली, और जवाबन वलीद को कहर चढ़ गया। पेदर पे वो उसके बदन पर बेल्ट से निशान डालता चला गया। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। रोहा की प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो गया था। घर का निजाम जैसे तैसे ही चल रहा था। बस इतना हुआ था कि मुरवान उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो भी ज्यादातर ऊपर ही रहती थी। कुछ दिन पहले उसने मुरवान से सर्दियों के कपड़ों का कहा था। उसने सर हिलाकर ओके कर दिया। 4 दिन बाद रोहा को फिर से याद आया। मुरवान अभी वापस आया ही था। वो उसे खाना दे रही थी। मुरवान, मैंने आपसे सर्दियों के कपड़ों का कहा था। वो बोली। हाँ मुझे याद है, ला दूंगा। 1 हफ्ता हो गया है, कब ला कर देंगे? वो उसके पास ही बैठ गई। बस कुछ दिन सब्र कर लो, सैलरी मिलते ही ला दूंगा। क्यों, आपके पास पैसे नहीं हैं क्या? रोहा जी भर के हैरान हुई। पैसे तो हैं, लेकिन सैलरी आ लेने दो, मैं तुम्हें ज़रा अच्छी सी शॉपिंग करवा दूंगा। रोहा को साफ लगा वो बात को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुरवान, मैं बेवकूफ़ तो हूं नहीं।
सैलरी से कतई नजर शहर की टॉप एकेडमी चलाते हैं आप, और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मुझे सर्दियों की शॉपिंग ही करवा दें। इधर देखें मेरी तरफ। रोहा ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं यार। मोरवान बताएं मुझे। वो फरहान भाई को कुछ पैसे चाहिए थे, बस उन्हें दे दिए, उसने कहा। कितने पैसे? रोहा ने पूछा। 50,000। वो नजरें चुराते हुए बोला था। 50,000 उधार करके दिए हैं या ऐसे ही? रोहा की आंखें फैल गई। उन्होंने तो उधार कहकर ही लिए हैं, लेकिन मुझे पता है कौन सा लौटा देंगे, मुरवान ने कहा। मुरवान, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि फौज में होने के बावजूद आपके भाई आपसे किस खुशी में पैसे उधार मांगते हैं। वो तड़क गई थी। रोहा, वो दोनों कौन सा किसी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं। लिमिटेड सी सैलरी है दोनों की, जिसमें फैमिली को भी मैनेज करना होता है और अपना खर्चा भी उठाना होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सारी उम्र वो आपसे उधार के नाम पर पैसे ले लेकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे? रोहा ने गुस्से से कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मुरवान ने कहा। ऐसा ही है मुरवान मिर्जा। आपके भाइयों के पांव आपके कंधों पर रखे हुए हैं, और उन दोनों के बोझ के जेरे असर आप अपने कंधे सीधे ही नहीं कर पा रहे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले मुरवान, वो आपके भाई हैं, इसलिए आप उनके सामने जबान नहीं हिला पाते। लेकिन जिस दिन मुझे चढ़ गई ना, उस दिन मैं ऐसी जबान हिलाऊंगी कि आपको लग पता जाएगा। वो गुस्से से कहती हुई उठ खड़ी हुई थी। पिछले एक हफ्ते से उसकी और वलीद की बोलचाल बंद थी। वो चुपचाप पिछले एक हफ्ते से उसकी जरूरतें पूरी कर रही थी। खाना पका कर दे रही थी, कपड़े धो कर दे रही थी, इस्त्री कर कर दे रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी। वो जितना भी बुलाने की कोशिश करता, वो बस खामोशी से उसकी सुनी जाती, और इस गुजरे एक हफ्ते में भी वो उसकी मर्जी के बगैर उस पर 2 बार हक जमा चुका था। वो भी सर्दियों की एक ऐसी ही शाम थी। नंदे हस्बे मामूल ऊपर अपने कमरे में मूवी देखने में मगन थी। दोनों देवर कहीं बाहर निकले हुए थे, और सास हस्बे मामूल बाहर चारपाई डालकर बैठी थी। वो किचन में थी जब उसने बैरूनी दरवाजा बजने की आवाज सुनी। दरवाजा उसकी सास ने ही उठकर खोला। जुहेब की शनासा सी आवाज पर वो भाग कर किचन से निकली थी। उसके घर वाले आए थे। आबदा, हसीब खान, हिना, जुहेब और हिना का 4 साला बेटा भी साथ था। वो खुल के मुस्कुरा भी ना सकी, खुश भी ना हो सकी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जुहेब ने जोर से गाते हुए उसकी तरफ आया और उसे गले से लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि मुबरा को तो याद भी नहीं होगा कि आज उसका बर्थडे है। हिना ने मुस्कुराते हुए केक उसकी तरफ बढ़ाया था। कैसी है मेरी बेटी? हसीब खान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें भीग गईं। ठीक हूं अब्बू, वो बस फीका सा मुस्कुरा दी थी। बाकी सब लोग किधर गए? उन्होंने पूछा। इधर ही हैं सब। वलीद तो अभी तक आई नहीं अब्बू, आप लोग अंदर आ जाए। वो उन सब लोगों को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। आप लोग बैठे, मैं चाय बना लूं। वो कमरे से बाहर जाने लगी तो हिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम लोग चाय पीने नहीं आए, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, और इससे पहले कि उसामा खुद ही इस केक पर छुरी चला दे, तुम बस इधर आ जाओ और अपना केक काटो, हिना ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा। जुहेब ने झटपट केक वाला डब्बा खोला और केक निकालकर उसके सामने रख दिया। शमीम बहन, छोटी दोनों कहाँ हैं? उनको भी बुला ले, आबदा ने कहा। मैं बुला कर लाती हूँ, शमीम खुश से लहजे में कहती हुई ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद इरम और अनम मारे बांधे ही नीचे उतरी थी। मुबरा के ससुर भी आ गए थे। खान साहब, ये सब तो शहरी लोगों के चोंचले होते हैं, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता, ये तो बच्चों के करने के काम है। वो अपने अजली फाड़ खाने वाले लहजे में बोले। चौधरी साहब, ये चोंचले नहीं है, ये तो बस मिल बैठने का एक बहाना है। हमें मुबरा की शक्ल देखे 2 महीने से ऊपर हो गए थे, सो हमने सोचा कि चलो इस बहाने उससे मिलाते हैं। हसीब खान ने स्वभाव से कहा। पुप्पो केक काटे ना। 4 साल उसामा की बस हुई पड़ी थी। मुबरा ने हंसते हुए उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके हाथों में छुरी पकड़ा दी। फिर उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लेकर उस केक पर छुरी चलाई थी। वो सब उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। हिना के मना करने के बावजूद मुबरा चाय बना लाई। एक बार फिर मुबरा का कोई इम्तिहान ही था कि उन लोगों के बैठे बैठे वलीद वापस आ गया था। क्या हाल है अंकल? वो तो सीधा गुजर कर कमरे में जाने लगा था, लेकिन बस हसीब खान को देख कर रुक गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? वो उससे गले मिलते हुए बोले। शुक्र है अल्लाह का, मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ। बस एक नज़र सामने पड़े केक और तोहफों के अंबार पर डालते हुए वो अंदर चला गया, और मुबरा के कई बार बुलाने पर भी दोबारा कमरे से बाहर नहीं निकला।
मुबरा, बेटे सब ठीक है ना? आबदा आखिर को माँ थी। उन्हें अपनी बेटी के चेहरे पर वो आसूदगी और खुशी नजर नहीं आई थी जो 4 माह की नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होती है। जी अम्मी, सब ठीक है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो तेरे चेहरे पर नील के निशान थे। अब भी तेरे हाथों और चेहरे पर खराशों के निशान हैं। सच बता, वलीद मारता है तुझे? उन्होंने कहा। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्दी से बोली। मुबरा, बेटे हमेशा याद रखना कि हमने तुझे ब्याह है, बेचा नहीं है। अगर मैंने ये कहा था ना कि पसंद की शादी के बाद शिकवे का इख्तियार खो देगी, तो सिर्फ गुस्से में कहा था। अगर तूने अपनी मर्जी से शादी कर भी ली है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर वालों ने तुझे लावारिसों की तरह यहाँ फेंक दिया है। मेरी बच्ची, तू लावारिस नहीं है। वो उसे सीने से लगाई कहती चली गई। मोबरा ने बमुश्किल अपने आंसुओं को उमड़ने से रोका था। कुछ देर बाद वो सब वापस चले गए। उनके जाते ही उसकी सास ने वो तूफान उठाया कि अल अमान अल हफीज। हमें तो रास्ते का पत्थर ही समझ लिया है इसके मैके वालों ने। कूड़े की तरह उठाकर एक साइड पर लगा दिया हमें। और इस नवाबजादी ने हमें ये तक बताने की जहमत नहीं की कि आज इसके घर वालों ने आना है। वो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। आंटी प्लीज, मुझे खुद नहीं पता था कि इन लोगों ने आना है। वो जरा तेजी से बोल गई और उसे पता ही न चला कि वलीद ऐन उसके पीछे खड़ा है। देखा वलीद, ऐसे जबान चलाती है ये। जब जब इसके माँ बाप होकर जाए तब तब इसका दिमाग अर्शों पर पहुंच जाता है। शमीम के ड्रामेबाजियों का कोई हाल नहीं था और वलीद तो उसके घर वालों को देखकर ही सर तपा सुलग गया था। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे घर वालों में से कोई यहां नजर ना आए। उसने वैश्यों की तरह मुबरा के बालों को जकड़ लिया था। वलीद, वो मेरे माँ बाप है, वो 1000 बार यहाँ आएंगे। आप होते कौन है उन्हें रोकने वाले? मुबरा की एकदम बस हो गई और वलीद ने उसे सहन में ही लमलेट कर लिया था। उस दिन उसने कॉलेज से छुट्टी कर ली। एक तो जिस्म में बहुत दर्द था और दूसरे सर भी भारी सा हो रहा था। वो अपने कमरे में थी जब उसने बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। वो एकदम घबरा कर बाहर निकली। सहन में एक मार का कारसाज गर्म था। इरम और अनम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुई पड़ी थी और उसकी बड़ी नंद जलती पर तेल का काम कर रही थी। क्या हुआ है? होना क्या है? जरा जो इनमें से किसी को काम करना पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है, उसकी बड़ी नंद ने कहा जिसका नाम अलमास था। अब कौन सा काम रह गया था करने वाला? उसने फिर पूछा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो सारा किचन समेटकर और बर्तन धोकर अपने कमरे में गई थी। मैंने जरा सा सहन की सफाई का क्या कह दिया? 4 दिन से झाड़ू नहीं लगा, शमीम ने कहा था। इस इतने बड़े घर की सफाई भी एक मसला ही थी। मुबरा अपना कमरा खुद साफ करती थी और अपना वॉशरूम भी खुद ही धोती थी। इरम और अनम मारे बांधे अपना और भाइयों का कमरा साफ कर देती थी। अलमास अपना कमरा खुद साफ कर लेती थी। असल मुसीबत तब आती थी जब सहन साफ करना पड़ता था। उसने और अलमास ने बमुश्किल उन दोनों को अलग अलग किया। मुझे किसी ने आइंदा सहन में झाड़ू लगाने का कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इरम पैर पटकती हुई अंदर चली गई। आंटी, आप कोई काम वाली देख लें सफाई वगैरह के लिए, उसने धीरे से कहा। काम वाली कौन सा मुफ्त आ जाएगी? शमीम ने तड़क कर कहा। मैं दे दिया करूंगी इसे पैसे, ये रोज रोज की लड़ाई तो खत्म हो। वो बोली और शमीम जैसे बस यही सुनने के लिए बेताब थी। शाम होते ही उसने काम वाली मुहैया कर भी ली। महीने का एक नया खर्चा तैयार हो गया था। शाम को वलीद घर आया तो उसने चुपचाप खाने की ट्रे उसके सामने रख दी। वो चुपचाप खाना खाने लगा। एकदम ही मुबरा का दिल मतलाया था। मुंह पर हाथ रखते हुए वो वॉशरूम की तरफ भागी। पिछले 3 दिनों में ये उसकी चौथी उल्टी थी। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकली तो चेहरा निढाल सा था। क्या हुआ है? वलीद ने लठमार लहजे में पूछा। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें तो हम डॉक्टर के पास हो आते हैं, वो माथे पर से पसीना साफ करते हुए बोली। हुआ क्या है? वलीद ने फिर पूछा। वो जवाबन बस जोमाइनी सा उसे देख कर रह गई। उसे यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी खाना खाकर वलीद जाने के लिए तैयार हो गया। उसके सारे शकूक व शुबहात बिल्कुल दुरुस्त थे। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। वलीद घर आते हुए मिठाई का डब्बा लेकर आया। वो सभी घर वाले बेइंतहा खुश थे। मुबरा बस बुझे दिल के साथ अपने कमरे में चली आई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वलीद उसके बराबर में आकर लेटा और उसे बड़े हक से अपनी तरफ मोड़ लिया। आई एम सॉरी, उसने हल्की सी सरगोशी की थी। कब तक के लिए? मुबरा ने धीरे से पूछा। हमेशा तक के लिए, वो उसकी पेशानी पर होंठ सब्त करते हुए बोला था। उस दिन राबिया मिलने के लिए आई थी। साथ उसका शौहर भी आया था।
वो कुछ दिन बाद वापस जा रहा था। कुछ देर बाद निम्रा का बेटा भागता हुआ उसके कमरे में आया। चाचू, आपको दादी बुला रही हैं, वो कहकर वापस भाग गया। इतवार का दिन था, सो मुरवान अभी तक बिस्तर में घुसा हुआ था। कंबल एक तरफ हटाते हुए वो बिस्तर से उतर आया। रोहा, मेरे लिए कपड़े निकाल दो, रोहा से कहता हुआ वो नीचे चला गया। रोहा ने उसके कपड़े निकालकर वॉशरूम में लटकाए और फिर उसका नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा ऊपर आया। मुरवान, नाश्ता कर ले। वो ट्रे उठाकर कमरे में आ गई। मुरवान ने उजरत में नाश्ता किया और वॉशरूम में घुस गया। कहीं जा रहे हैं आप? रोहा ने पूछा। एक दोस्त से मिलने जाना है, वो बालों में कंघा चलाते हुए बोला। लंच में क्या बनाऊं? जो दिल चाहे बना लेना। वो जूते पहनते हुए कमरे से बाहर निकल गया। 2-2.5 घंटे बाद उसकी वापसी हुई थी। जोया ने राबिया और उसके शौहर के लिए दोपहर का बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना बनाया था। जाहिर है उस खाने के तमाम लवाजमात मुरवान ने ही लाकर दिए थे। रोहा बस थोड़ी देर के लिए नीचे आई और कुछ देर बाद राबिया के पास बैठकर दोबारा ऊपर चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों मियाँ बीवी वापस चले गए। 2 दिन बाद उसने निम्रा और जोया को आपस में बातें करते हुए सुना कि उस दिन राबिया को सारी शॉपिंग मुरवान ने करवाई थी, फरहत के कहने पर। रोहा का दुख का कोई हाल नहीं था। मुरवान, अब आप झूठ बोला करेंगे मुझसे। वो उस रात रो ही पड़ी। रोहा, मुझे लगा तुम्हें दुख होगा, तुम कहोगी कि मुझे तो शॉपिंग करवाई नहीं और बहन को कपड़े ले दिए। वो बोला। अब पैसे कहाँ से आए आपके पास? उसने पूछा। एक दोस्त से पकड़ लिए थे, वो बोला, और रोहा के आंसू साफ किए। मुरवान, मेरी बात लिख लें आप। इन बहन भाइयों की खातिर आप अपना घर उजाड़ लेंगे, देख लेना। वो बस रोते हुए उठ गई थी। उस दिन वापसी पर भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने कॉल करके वलीद को साथ चलने का कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बस से चली जाओ, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। वलीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिल मतलाए जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। मुबरा, मैं क्या करूँ अब? रिक्शा करवा लो। नाचार वो स्टॉप पर चली गई। रिक्शा नदारुद। उसने बस का इंतज़ार शुरू कर दिया। उसे खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे। बस आई तो उसमें चढ़ गई। लोकल बस में सिगरेट और पेट्रोल की बू से उसका दिल और मतलाने लगा। अपने स्टॉप पर उतरते उतरते उसकी बस हो चुकी थी। निढाल होते वजूद के साथ वो वहीं बड़े बेंच पर गिर सी गई। वहां से 512 को रोड जाती थी। बमुश्किल उसने अपना सेल निकाला और देवर को कॉल की। इमाद, मुझे ले जाओ। भाभी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, इमाद को कॉल कर ले। उसने दूसरे को कॉल मिलाई। भाभी, मैं तो मैच खेलने आया हुआ हूँ, आप रिक्शा लेकर चली जाए। उसने आंखों में आया पसीना साफ करते हुए एक करीबी दुकानदार को रिक्शा रोकने का कहा। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन रिक्शा न दारुद। उसे यकदम उल्टी आ गई। उस दुकानदार ने ही उससे पानी का गिलास पकड़ाया था। वलीद, मेरी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज़ किसी से कहें मुझे ले जाए। वो बोली तो आवाज़ भुर्रा गई। मुबरा, रिक्शा ले लो, मैं किसे कहूँ? आपने कहा था आप मेरे साथ हैं। वो बिलक पड़ी थी। मैं इतना दूर बैठा हूँ, क्या करूँ? वो तड़ाक पड़ाक करने लगा था। मुबरा के हाथ से मोबाइल छूट गया। एकदम ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो धड़ाम से बेंच से नीचे गिर गई। तभी वहां उसके 2 स्टूडेंट्स ने उसे देख लिया। मैम, मैम, आप यहाँ? वो दोनों भागकर उसके पास आए थे। मोबरा बेदम हो रही थी। जुहेब को कॉल करना प्लीज। उनमें से एक ने जुहेब को कॉल की थी। वो बुखला कर भागा आया। यूं सरेआम चौक में मर्दों के बीच मुबरा को गिरे देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो उससे उठाकर अस्पताल लेकर भागा। कुछ ही देर में आबदा और हसीब खान भी वहां पहुंच गए। उसका बीपी बिल्कुल 0 हो गया था। वो पल्सलेस हालत में अस्पताल पहुंची थी। जुहेब का मारे गुस्से के कोई हाल नहीं था। खुद कहाँ था वो बेगैरत? वो उसके होश में आते ही फट पड़ा। ऑफिस में। मुबरा की आंखें अंदर को उतर गई थी। कितना कहा था तुझे कि इतनी दूर का कॉलेज सिलेक्ट न कर, यहाँ अपने शहर में ही रह। कम अज कम बंदा सुनगुन ही ले लेता है। आबदा को उस पर गुस्सा भी आया और तर्ज भी। अम्मी, बस अचानक ही तबीयत अपसेट हो गई थी, वो मिनमिनाते हुए बोली थी। जुहेब उसे सीधा घर ही ले आया। वलीद ने कॉल करके पूछा तक नहीं कि वो घर पहुंच गई या नहीं। मुबरा दवाओं के जेर असर बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। शाम 6 बजे उसे वलीद की कॉल आई, जो उसके बजाय हसीब खान ने सुनी। मुबरा, कहाँ हो? तुम कहाँ हो दामाद जी? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं तो अभी वापस आया हूँ। मुबरा आपकी तरफ है, वो बोला। उसे चौराहे से उठाकर लाया है जुहेब, बेहोशी की हालत में, वो सर्द लहजे में बोले। अब कैसी है वो? वलीद ने कुछ देर बाद पूछा था। अभी तो सो रही है।
तुम चक्कर लगाना, बात करनी है तुमसे, उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा था।